Good morning, students. Our last topic is left of the primary memory, that is the RAM requirements. Now, what are RAM requirements? The amount of RAM on the computer determines the amount of programs and data. It means uh, if there is a more the RAM, the faster the computer will respond. We can there is a amount of programs and computer can handle at one time, because जितनी आपकी रैम ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं, डेटा जो है कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, और जितनी ज़्यादा रैम आपकी होगी उतनी ज़्यादा जो आपका कंप्यूटर है वो फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा, फास्ट चलेगा. Now let's come to the next topic, that is the ROM, that is the read only memory. I told you students that primary memory are divided into two parts. One is RAM and second is ROM. RAM we did in the previous video. Now we are start with the ROM, that is the read only memory. Now ROM refers to memory chips used for storing data that can be read only. ROM is used for the chips only for the storing data that is only read, not edit the data. The data on ROM chips cannot be modified, hence the name read only memory. जैसे कि आपको नेम समझ में आ रहा है, read only memory, it means we can read, we cannot write in that. ROM is non-volatile. ROM non-volatile है because if we switch off the computer, data cannot be lost. Now ROM chips contain data, instruction or information that is recorded permanently. ROM वो वाला डेटा इंस्ट्रक्शन कैरी करता है जो कि परमानेंटली रिकॉर्डेड होता है. For example, ROM contains the basic input-output system, which is a sequence of instructions the computer follows to load the operating system and other files when you first turn on the computer. Many other devices also contain ROM chips. For example, ROM chips in many printers contain data for fonts. So, जैसे कि आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी लाइक प्रिंटर्स के लिए जो आपका डेटा जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो करता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, मेरे रोम में होती है. दैट्स वाई वी कैन ओनली रीड, वी कैन नॉट एडिट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है. वी कैन नॉट चेंज इन दैट इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? सो एंड वाई इट इज इन द रोम? इट इज इन द रोम बिकॉज दैट ओनली वी कैन एक्सेस. आई टोल्ड यू इन प्राइमरी मेमोरी ओनली वी कैन एक्सेस द programs. So in ROM is also in the primary memory, but it only can read, we cannot write in that. Now there are many different types of ROM chips. First is programmable read only memory, second is erasable program ROM, third is electrically EPROM. So first we read about programmable read only memory. It is a blank chip. You can see this is a ROM chip. Is a blank ROM chip on which you can place items permanently. अब इसके अंदर अपने items को permanently store कर सकते हैं. Programmers use microcode instructions to program a ROM chip. Now next is erasable program ROM. Now erasable आपको समझ में आ रहा होगा, erasable से we can erase also in this. Is another type of ROM, the contents of which are erased by ultraviolet light and then reprogrammed by PROM program. So हम इसके अंदर again प्रोग्राम को फिल कर सकते हैं और इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, एज इट नेम कंटेन इरेजेबल. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकली EPROM. नाउ इट इज अनदर वेरिएशन ऑफ द PROM चिप विच अलाउज अ प्रोग्रामर टू इरेज द माइक्रोकोड विद एन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. किसके? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली, सो वी कैन इरेज इट इलेक्ट्रिकली. क्लियर? Now next is cache memory. This is the important, that is the cache memory. Now what is cache memory? Cache memory is a temporary storage area for instructions and data that enhance the CPU speed. जो CPU की स्पीड को बढ़ाता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैशे मेमोरी के अंदर वो चीज़ स्टोर होती है जो हमने अभी ऑलरेडी एक्सेस की होती है, जिसको हम जल्दी एक्सेस करते हैं. So most of today's computers improve their processing time with cache memory. Cache improves the processing speed of the computer because it stores frequently used, अभी मैंने बताया था, frequently used instructions and data. Cache is built directly in the processor chip. Processor chip के अंदर आपका एक cache memory होती है. Most modern computers have 3 types of layers of cache memory, that is level 1, level 2 and level 3. Now level 1 cache is built directly on the processor chip. जो लेवल 1 कैशे होती है वो डायरेक्टली आपकी प्रोसेसर चिप के ऊपर होती है, एंड इट इज़ यूजुअली हैज़ अ वेरी स्मॉल कैपेसिटी. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है. नेक्स्ट इज L2 कैशे इज स्लाइटली स्लोअर देन L1 कैशे बट हैज़ अ मच लार्जर कैपेसिटी. वो स्लोअर तो होता है लेकिन जो उसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है देन दी L1.
नाउ L3 इज अ कैशे ऑन द मदरबोर्ड दैट इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेसर चिप. अब जो ये L3 कैशे होती है ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है रादर देन द प्रोसेसर चिप. क्लियर? नाउ हाउ कैशे मेमोरी वर्क्स. व्हेन द प्रोसेसर नीड्स एन इंस्ट्रक्शन और डेटा, जैसे ही प्रोसेसर किसको किसी इंस्ट्रक्शन डेटा की नीड होती है, इट फर्स्ट सर्चेज इन द कैशे. अब वो सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा? कैशे में. नाउ L1 कैशे, देन L2 कैशे एंड देन L3. अब जितने कैशेज हैं उनको चेक करेगा. इफ इट डजंट लोकेट द आइटम इन कैशे, अगर अब कैशे में नहीं होगी, देन इट सर्चेस रैम. अब प्रोसेसर किस में सर्च करेगा? रैम में सर्च करेगा. इफ द इंस्ट्रक्शन और डेटा इज नॉट फाउंड इन रैम, अगर अब रैम में भी नहीं मिलेगा तो वो कहाँ सर्च करेगा? स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क मेमोरी में सर्च करेगा. तो हाउ कैशे मेमोरी वर्क्स. कैशे मेमोरी वर्क्स लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रोसेसर. प्रोसेसर फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ चेक करेगा? कैशे मेमोरी में, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली डेटा होता है वो कहाँ चेक करता है? कैशे में. अब कैशे में चेक किया, इफ इट इज नॉट फाउंड इन कैशे देन इट गोज टू द रैम. अब वो किसके पास जाएगा? रैम के पास. अब अगर उसके पास रैम में भी नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम. परमानेंटली जब हम डेटा को स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं? हम सेकेंडरी मेमोरी में. एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल बिकॉज इट कैन नॉट बी lose the data when we switch off the computer. And so, very good example is hard disk. Clear? It is also known as backup memory. इसे backup memory भी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है वो कॉपी होकर कहाँ चले जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में. That's why it is also known as backup memory. I hope it is clear to you. Thank you class.